मैं एक फैकल्टी हूँ अर्बन प्रो पे। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। मेरे को तीनों मेजर लैंग्वेजेस आती हैं, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, नेपाली भी आती है थोड़ी थोड़ी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं। तो आई जस्ट कीप इट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ओके, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। ओके, स्टूडेंट बेस हिंदी और इंग्लिश का ही सबसे ज़्यादा होता है। तो बेसिकली KSP पे हम लोग आज बात करेंगे। केमिस्ट्री का जो इक्विलिब्रियम का चैप्टर रहता है उसमें KSP का रहता है एक। So let's talk about KSP. KSP is nothing but solubility product, right? Solubility product, when is it applicable? The first thing that we need to know. बहुत सारे टीचर्स आपको ये नहीं बताते हैं कि KSP को यूज़ कब करना है। तो आप कंसिडर कीजिए कि एक सैचुरेटेड सोल्यूशन आपने लिया है स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का, यानी कि बहुत गाढ़ा एक सोल्यूशन ले लिया। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स होते क्या है? स्टफ लाइक AgCl, राइट? आपको पता है AgCl एक सिल्वर कलर की प्रेसिपिटेट देती है कि नहीं? तो सिल्वर क्लोराइड when it's in equilibrium it will have a certain amount of precipitate, as well as in the medium there will be Ag plus and Cl minus ions also. So in this particular container we have both the ionic components and our solid component. So whenever we will have a dynamic equilibrium, okay, between this ions and the solid part of the salts, then we can say that KSP product we can find out for that particular solution. Okay, so another situation is there where we can find out the solubility product in case of freely soluble salts like NaCl. ठीक है, सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल है। अगेन ये आपको ज़्यादातर टीचर्स लोग बताएंगे नहीं कि फ्रीली सोल्यूबल सॉल्ट्स के लिए भी यू कैन टेक आउट KSP, ओके। बट क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है कि बहुत बहुत गाढ़ा सोल्यूशन लेना पड़ता है। इससे होता क्या है कि सॉलिड भी रहता है उसमें, लाइक अगर नमक लिया तो एकदम नमक भी रहेगा, और सोल्यूशन में you will have the ions also, that means Na plus and Cl minus will also be furnished. तो यहाँ पे फिर से एक डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन दी आयंस एंड द सॉलिड बन जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, आयंस जो फ्लरिश होंगे उसकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए। तो ये कंडीशन हो गया, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ आ गई हो, लेट्स मूव ऑन। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस इज द गवर्निंग लॉ behind your KSP or the solubility product, okay? So when we talk about solutions in which there is very little amounts of ions furnished, we can apply the law of chemical equilibrium to write our solubility product as, अगर इस particular equation के लिए आप लिखेंगे AgCl, solid में saturated solution ले लीजिए, okay, take a saturated solution and then put it as the aqueous components, okay, these are the ions furnished. So from this we can write that activity of Ag plus activity of Cl minus divided by activity of AgCl. Okay, now you must be wondering what activity is. तो आपको ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना जान लो कि एक्टिविटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। एक गामा फैक्टर रहता है इस इनइक्वालिटी को उठाने के लिए। यू राइट द इक्विलिब्रियम, यू राइट द कांस्टेंट, ओके, एज गामा, ओके। सो A equals to gamma into C, okay. So this particular inequality you have to keep in mind, that activity is directly proportional to concentration, and activity is very close to, you can say equal to the concentration of any ion, in which case, in the case where there is very low concentration of the ions furnished, ठीक है। मतलब स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बोल लीजिए, या फिर एक सैचुरेटेड सोल्यूशन जिसपे बहुत कम आयंस फ्लरिश हुए हैं, ओके। सो नाउ यू कैन ऑल्सो राइट एज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट एज Ag plus to the power 1 Cl minus to the power 1 divided by AgCl का concentration. Now you must be knowing already that whenever something is there in the solid state, say concentration or activity, okay, we consider it to be unity by convention, okay. So this is 1, but this activity of AgCl is also 1. So basically we are left off with this part and this part. केस स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा बात करते हैं।
तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को कब यूज करना है वो तो हमने जान लिया। के स्टेबिलिटी कब यूज करते हैं? के स्टेबिलिटी बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जब कॉम्प्लेक्स आयन की बात हो रही होती है। कॉम्प्लेक्स आयन होती क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन वो होती है जहां पे आपके पास एक आयनिक कंपोनेंट रहता है और उसके साथ आप सम अमाउंट ऑफ लिगैंड ऐड कर रहे हो, इसको हम लिगैंड बोल देंगे, ठीक है, लिगैंड बोल देंगे। जब आप इसके साथ कोई लिगैंड ऐड करते हो, से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस अमोनिया, तो होता ये है कि ये आपको एक ऐसा दिखने वाला कंपाउंड देता है। इसके ऊपर चार्ज क्या होना चाहिए? सिर्फ यही तो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर हमारा चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल लेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। अब इसका इक्विलिब्रिया का जब बात होगा तब हम इसको के स्टेबिलिटी बोलेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जेई के लिए जो यूज होता है वो के इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू के स्टेबिलिटी इनटू के एस पी, ये होती है, ठीक है। इसको पहले हम लोग थोड़ा ध्यान में रखते हैं क्योंकि एक फर्दर क्वेश्चन अभी हम जो करने वाले हैं उसमें यूज होने वाला है। अब इसका डेरिवेशन क्या है ये हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं, लेट मी रेज द स्क्रीन फॉर यू फर्स्ट, ओके। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन जनरली मैं क्लास के एंड में करवाती हूँ क्योंकि ये एनकम्पास करता है हर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। अगर आपको ये समझ नहीं भी आ रही है तो नो प्रॉब्लम, विल बी डीलिंग विद इट, ओके। पर फिर भी देख लीजिए, शायद समझ आ जाए। तो आप पॉज करके क्वेश्चन को थोड़ा सुन लीजिए या फिर नोट डाउन कर लीजिए। आई वुड सजेस्ट आप नोट डाउन कीजिए इसको। सो कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ ZnOH whole twice, okay, in 1 molar ammonia solution at room temperature। room temperature पे बोल दिया गया है। जो solubility product है ZnOH2 का वो दिया हुआ है आपको, ठीक है। इसका वैल्यू है 1.8 इंटू 10 टू द पावर -17 और जो के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो भी आपको दिया हुआ है। अब कौन सा आयन यहाँ पे फॉर्म होने वाला है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर आयन फॉर्म हो रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, ये पर्टिकुलर आयन जो दिया हुआ है यहाँ पे, इससे आप इसका इक्वेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं जिससे आपको के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने में मदद मिलेगी। मोर ऑन दैट अ लिटिल लेटर, लेट्स जस्ट गिव द वैल्यू टू इट एज पर द क्वेश्चन। तो ये हो गई, आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। अब ये ZnOH2 का जो है ना, आपको मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, इसको हम लोग X से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए मोलर सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। आप एक कोई भी सिंपल सा आप एक सॉल्ट ले लीजिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कुछ एग्जाम्पल, CH3 COO होल ट्वाइस Ca, ठीक है। तो इसमें हमारा आएगा क्या, फर्निश क्या होगा, इसमें होगा एसिटेट आयंस फर्निश, राइट। वीक सॉल्ट है या इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, इसलिए इसका जो आयंस फर्निश होगा वो ज्यादा नहीं होगा। तो 2 मोल्स ऑफ दिस फर्निश हो रहा है और Ca2+ का एक आयन हम लोग को मिल रहा है यहाँ पे, करेक्ट है। अब आपको इसका अगर KSP निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे? KSP आप कैसे निकालोगे? आपको ऐसा लिखना है कि इसको इनिशियली इसका x अमाउंट रहेगा, 0 0 रहेगा, है ना। एट इक्विलिब्रियम होता ये है कि 1 माइनस एक्स हो जाएगा ये एंड 2x हो जाएगा। x क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, 2x क्यों लिखा? क्योंकि 2 मोल्स ऑफ दिस CH3CO- हैव बीन फर्निश्ड, ठीक है। तो 2x हो गया और यहाँ पे 1 मोल है तो इसको x लिख दीजिए, ओके। अब इसका KSP हम लोग निकालेंगे कैसे? KSP as you know is written as in terms of concentration, okay, CH3COO minus to the power 2 and Ca2+। आप नोटिस कीजिए स्टोइशियोमेट्री कोएफिशिएंट पे रेस किया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो ये CH3CO माइनस जो है we have to take it as 1 minus out here it is 2x, so we'll write 2x raised to the power क्या है यहाँ पे 2 और Ca2+ का x है, राइट। सो दिस इज योर 4x² into x which is 4x cube. So this is your solubility product in terms of the x.
अब इस x को हम लोग इंटरचेंजेबली इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोल सकते हैं x को, मतलब एक मोल से कितना मोल्स डिसोसिएट हुआ, और ये x जनरली बहुत बहुत छोटा होता है। या फिर हम इस x को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब कितना एक मोल में से कितना अमाउंट सॉल्यूशन में जाके डिसॉल्व हुआ और आयंस फर्निश किया, उसको बोलते हैं मोलर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो मोलर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। इसी बेसिक प्रिंसिपल को हम लोग यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ZnOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग सॉलिड स्टेट में ले लिए। इसको अगर आयनिक फॉर्म में लिखना है तो सबको आती होगी ये लिखना, सबको आती होगी। ये देखिए 2OH माइनस, इतना तो क्लियर है ना। अब KSP जो है इसको एज पर आवर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम ऐसे लिखेंगे, इसको OH माइनस लिखेंगे, रेज टू द स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख दिया इसको, है ना। अब ये हमारी गिवन है वैल्यू, क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी बता दी थी, है ना। इसको KSP1 बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको KSP बोल दीजिए, क्योंकि दूसरी जो है आयनिक कॉम्प्लेक्स आयन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कौन सा हम लोग कंसिडर कर रहे हैं? ZnNH3 होल 4 2+। तो इसको बनाएंगे कैसे? पहले तो Zn2+ लेंगे जो यहाँ से हमको मिली है, राइट, और फिर उसको अमोनिया सोल्यूशन में इसको हमने डिसॉल्व किया है। इन द क्वेश्चन इट्स मेंशन्ड अमोनिया सोल्यूशन में इसका मोलर सोल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, इसलिए हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि Zn2+ यहाँ पे यूज कर रहे हैं, प्लस 2NH2 या 4NH3 यूज करेंगे। इसको इक्विलिब्रियम का साइन हमको देना ही है। इससे मिलेगा क्या हम लोगों को? ZnNH3, इस एक जिंक मॉलिक्यूल के साथ 4NH3 ऐड हो जाएगा, और ऊपर हमारा चार्ज क्या आएगा? Zn के ऊपर जो चार्ज था, यानी कि 2+, राइट। तो इसको K स्टेबिलिटी भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन की जब हम लोग बात करते हैं तो K स्टेबिलिटी का बात करते हैं या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, सिंपली प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, है कि नहीं? इतना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, आई एम श्योर। इतनी समझ आ गई है ना। अब इसकी भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। आपको ये भी पता है कि K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू K स्टेबिलिटी इनटू KSP, है ना। अब इसको K स्टेबिलिटी क्यों बोला, KSP क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इतने भी क्लियर है। तो K स्टेबिलिटी और KSP इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो K इक्विलिब्रियम मिलेगा, है ना। इस K इक्विलिब्रियम का वैल्यू हम लोगों को देखना है। K इक्विलिब्रियम में हम लोग कौन सा इक्वेशन को कंसिडर करेंगे, ये भी देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उतना समझ आ गया हो तो अब देखिए, ओवरऑल रिएक्शन जो ऑब्टेन्ड होगा प्रीवियस दो जो इक्वेशन है उसको देख के, वो ये होगा कि ZnOH होल ट्वाइस, ये हमारा जो गिवन सॉल्ट है ना, इसी की मोलर सोल्युबिलिटी हमको कैलकुलेट करनी है। 4NH3 ले लेंगे अमोनिया, ठीक है, ये एक्वस सोल्यूशन में रहेगा, और इससे हमको एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और 2 हाइड्रोक्सिल रेडिकल मिलेगा। ये हमारा ओवरऑल इक्वेशन है, ठीक है। NH3 4 2+ 2OH माइनस। अगर आपको ये सब नहीं समझ आ रहा हो तो इट्स वेरी फाइन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को इक्विलिब्रियम का भी चैप्टर पढ़ना होता है, ठीक है। जितना भी आ रहा हो प्लीज ट्राई टू ग्रैब, ओके। अब हम लोगों को देखना है कि इक्विलिब्रियम जो होगा इसका क्या होगा? ZnNH3 होल 4 2+, है ना, और OH माइनस टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय NH3 टू द पावर 4, ठीक है। इतना क्लियर है? ये 2+ अंदर लिखिए या बाहर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोएफिशिएंट नहीं है, मुद्दे की बात ये है, ठीक है। तो K इक्विलिब्रियम का हम लोगों को ये मिला, ओके। अब K इक्विलिब्रियम का जब एक्सप्रेशन मिल गया हो, अगर हम लोग एट इक्विलिब्रियम देखें तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा x होगा, इसका जो होगा 1 - 4x मोल्स डिसोसिएट करेगा, हम लोगों को x मोल्स ऑफ ये देगा, दैट इज x मोल्स ऑफ ZnNH3 होल 4 2+ एंड 2x मोल्स ऑफ 2OH माइनस देगा, राइट।
तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिखे ZnNH3 का x है कॉन्सेंट्रेशन, OH माइनस रेडिकल का 2x है कॉन्सेंट्रेशन, रेज टू द पावर 2, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने लिखा इसको, है ना। अमोनिया का क्या है 1 माइनस 4x, तो उसको लिखिए यहाँ पे 1 माइनस 4x रेज टू द पावर क्या होगा बता सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पे होगा 4, राइट। सो नाउ if you solve this you are going to get 4x cube. तो this is K equilibrium's value, है कि नहीं? Dear students, we've already solved 90% of the question. Now आपको करनी है कि K equilibrium आपको पता है K stability into K SP, इन दोनों की वैल्यू आपको पता है। K equilibrium का वैल्यू यहाँ पे आपको मिला, X is the molar solubility, right? I hope यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो मुझे बताइएगा। तो दोनों का वैल्यू यहाँ पे हम लोग बिठा देंगे, इसके बाद x का वैल्यू कैलकुलेटर या फिर आप खुद कर लीजिए, इससे आएगा आपको आंसर 10 to the power -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए यूनिट को मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ये होती है वॉल्यूम की यूनिट, ये होती है मोल की यूनिट, नंबर ऑफ मोल्स की, राइट। तो मोल्स बाय वॉल्यूम क्या होती है? मोलारिटी होती है। तो यहाँ पे आपको यूनिट भी मैंने समझा दिया, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज please contact me. Thank you.